students, after simple present tense, the topic is present continuous tense. Chapter 17, it is given on page number 80, present continuous tense. Students, continuous का मतलब होता है the action is still going on. अभी भी वो काम चल रहा है, कोई कर रहा है, वो अभी भी वर्किंग में है. ओके, कंटिन्यूटी में चल रहा है वो काम. ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी एक्शन अगर वो अभी भी गोइंग ऑन पोजीशन में है या बिल्कुल चल ही रहा है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. गॉट इट? नाउ लेट्स रीड व्हाट इज गिवन एट द वेरी बिगनिंग. आई एम वॉचिंग टेलीविजन. They are reading in the library. Swati is working on the computer. See, I am watching, reading, working. ing, ing, ing. It shows that these actions are still going on. Okay, when we add ing with the verb, so it becomes continuous form. Okay, I am watching television. क्या वॉच कर रहे हैं? टेलीविज़न देख रहे हैं. आई एम वॉचिंग टेलीविज़न. दे आर रीडिंग इन द लाइब्रेरी. दे आर रीडिंग, पढ़ रहे हैं वो लाइब्रेरी में. स्वाति इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. स्वाति किस पे काम कर रही है? कंप्यूटर में काम कर रही है. सो दीज एक्शंस आर स्टिल गोइंग ऑन. नाउ द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड आर वर्ब्स एंड दे आर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. द वर्ड्स रिटन इन बोल्ड, दीज आर द बोल्ड. I am watching, are reading, is working. See, watching, reading, working, these are the verbs and these are the helping verbs. Is, am, are. Okay? ये हम continuous tense के लिए use करते हैं. Now, they tell us about actions which are still going on. I am watching, are reading and is working. Now, the present continuous tense tells us about actions that are going on at the time of speaking. Present continuous tense हमें उन actions के बारे में बताता है कि जब हम उस action के बारे में बोलते हैं तो वो चल रहा है काम. That are going on at the time of speaking means जब हम बोल रहे हैं उस काम को तो it means वो काम चल रहा है. See, I am watching television. किसी ने पूछा तुम क्या कर रहे हो? I am watching television. तुमने बोला I am watching television. It means तुम टेलीविजन अभी देख रहे हो. जब तुमने बोला वो काम चल रहा है. Okay, now see the structure of the present continuous tense. We use is, am, are. These are the helping verbs. Is, am, are plus ing form of the verb. I am, she is, I am walking, she is reading. Okay, walk के साथ ing ऐड किया, walking बना. Now ride के साथ ing ऐड किया, riding बना. तो ये continuous form में बन गए. हेल्पिंग वर्ब आपको अच्छे से पता है, आई के साथ एम यूज़ करते हैं. प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल नाउन है तो हम आर यूज़ करते हैं. सिंगुलर नाउन है तो हम इज़ यूज़ करते हैं. गॉट इट? लाइक यू कैन सी इन द बॉक्स ऑफ रिमेंबर वी राइट आई एम, ही, शी, इट, इज़. वी यूज़ इज़ विथ ही, शी, इट. ओके, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट इन द थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, इज़. और अगर किसी का नाम दिया है सिंगुलर का तो उसके साथ हम इज़ लगाते हैं. नाउ वी, यू, दे, दीज आर द प्लूरल सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट है ये तो हम लगाते हैं आर. नाउ वी वर्ड्स गिवन हैं जिसके साथ आप ing ऐड करेंगे तो वो कंटिन्यूस फॉर्म में बनते हैं. स्लीप प्लस ing स्लीपिंग, प्ले प्लस ing प्लेइंग, eat plus ing eating. In the same way, few words are given. These are very simple to read and learn, so you can do it yourself. Rise plus ing rising, riding, shining, running, hitting, shutting. So in the same way, exercise A you can do yourself. You have to do only one thing, just add ing with these action verbs. Okay, ये जो verbs given है इसमें सिर्फ आप ing ऐड करिए. सेंड पे ing ऐड करेंगे, सेंडिंग. वॉच प्लस ing वॉचिंग. इन द सेम वे ड्रिंकिंग, टॉकिंग, राइटिंग, ब्लोइंग, हाइडिंग, डाइंग, कैरिंग, सिंगिंग, फ्लाइंग, हिटिंग. ओके,
So A exercise, do it yourself and match the following. आप अच्छे से कर सकते हो. I के साथ कौन सा helping verb होगा, he के साथ कौन सा helping verb होगा, and try to match these subjects with these sentences. Okay, so A and B, do it yourself. Now C, fill in the blanks with the present continuous form of the verb in the given in brackets. Learn, swim, watch, write, tie. These are the verbs given and you have to use in these blanks. In blanks में अभी आप यूज़ करता है, पर डायरेक्ट नहीं कर दोगे आप learning. इनके साथ जो helping verb लगेगा. नीतू एक singular subject है. Okay, so Neetu is learning music from Mrs. Sen. In the same way, see the subject, whether it is a singular or plural, and use that helping verb of that particular subject, then use the verb. Got it? So do it yourself, A, B, C. Now come to page number 82. Simple present tense and present continuous tense. सिंपल प्रेजेंट आपने देखा होगा, आपने पहले पढ़ा होगा कि स्टूडेंट्स लेट्स सी व्हाट इज गिवन ऑन पेज नंबर 82. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सिंपल प्रेजेंट आप अच्छे से जानते हो दैट एक्शंस विच आर डन रेगुलरली, जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं. लाइक आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई ब्रश माई टीथ रेगुलरली. ब्रश आज किया, कल नहीं किया, बहुत दिनों बाद किया, ऐसा तो नहीं है. जो एक्शंस आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने अभी पढ़ा, दैट एक्शंस विच आर स्टिल गोइंग ऑन. सो वर्ड्स लाइक यूजुअली, every day, always, regularly are often used with this tense. These words हमें कई बार मतलब usually, every day, always जहाँ पर ये लगता है तो इस tense के साथ हम ये words use करते हैं. It means हम समझ जाते हैं कि ये present tense की बात हो रही है, simple present tense की. And words like now, at this moment are often used with this tense. जहाँ now लग जाए, at this moment लग जाए, इस समय, अभी, तो इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है. सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे, आई एम ब्रशिंग माई टीथ नाउ. अभी मैं अपना जो ब्रशिंग कर रहा हूँ, ठीक है, टीथ ब्रश कर रहा हूँ. सो ये नाउ वर्ड एट दिस मोमेंट वी यूज विद दिस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. मीन्स ऐसे सिंपल डिफरेंस बताया गया है. सिंपल डिफरेंस बच्चों एक चीज़ याद रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यू यूज़ दैट काइंड ऑफ सेंटेंसेस दैट आर डन ऑन रेगुलर बेसिस. मीन्स वो एक्शंस जो रेगुलर बेसिस पे होती हैं, हैबिचुअल पर्पस से होती हैं और यूनिवर्सल ट्रुथ को लेते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स कोई भी एक्शन विच इज स्टिल इन प्रोग्रेस, अभी भी वो चल रहा है. दैट इज द थिंग. Now D, fill in the blanks with the simple present or present continuous form of the verbs given in the brackets. Now you have to recognize, you have to identify whether the sentence with the blanks given are of simple present or of present continuous. Simple present से है या present continuous है, ये आपको देखना है. See, they dash to school every day. रोज जाते हैं, हैबिचुअल पर्पस में, ये सिंपल प्रेजेंट हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. दे डैश टू स्कूल नाउ. नाउ किसके साथ यूज करते हैं हम? सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस. द डॉग डैश वेन एवर इट सीज एनी स्ट्रेंजर. बाग, डॉग बाग करता है जब भी वो किसी स्ट्रेंजर को देखता है, ये उसकी हैबिट में है. तो इट मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट हुआ या प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नाउ वी द डॉग डैश नाउ बिकॉज इट हैज सीन अ कैट. नाउ, नाउ किसके साथ लगा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सो व्हाट यू हैव टू मेक इट एज अ सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. The dog is barking now because it has seen a cat. तो in the same way आपको ये सारे sentences खुद करने हैं. Okay. So this was all about present continuous tense. Thank you. Have a nice day.